حمزہ شہباز لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دبئی میں کا تقاضا کر رہی ہیں کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی جائیدادیں پہلے دبئی میں نکلی اور اب نیو یارک میں نکلی، آپ نیو جرسی میں نکلی۔ آپ نیازی صاحب، آپ کی زبان نہیں تھکتی تھی کہ منی ٹریل لے کے آئیں، نواز شریف صاحب کے خلاف حرزہ رسائی میں آپ کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ آج یہ مکافات عمل ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی بات جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ وہ جائیدادیں کیوں چھپائی گئیں، ان کا منی ٹریل جو ہے آپ کو دینا ہوگا۔ اگر نواز شریف جیل جا سکتا ہے، شہباز شریف کو ایک ایسے مقدمے میں جس میں بلایا نہیں گیا گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آج تک ایک پائی کرپشن ثابت نہیں کر سکے آپ شریف خاندان کے خلاف، اور ہیلی کاپٹر کیس کی بات ہوتی ہے تو آپ کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ نیازی صاحب کی توہین ہے۔ نیازی صاحب، یہ آپ کی توہین نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی توہین ہے، جہاں پر آپ کہتے تھے کہ ہم ایک پاکستان بنائیں گے۔ آج اپوزیشن کے لیے ایک پاکستان ہے اور نیازی صاحب کے احتساب کے لیے دوسرا پاکستان ہے۔ اور میں آج، مجھے کہنے دیں، میں پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب، آپ کبھی 50 چور گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ 50 مرغوں کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بات وہ کرتا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو۔ آج میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ عمران نیازی کا اپنا دامن داغدار ہے۔ کیا ہے؟ داغدار ہے۔ تو آپ کس منہ سے اپوزیشن کے خلاف روز چور اور ڈاکو کے نعرے لگاتے ہیں؟ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اور آج اس ایوان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات بھی کرنے لا آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو شخص خود کہتا تھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، آج آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ میمن ڈیم میں حصہ دار ہیں، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی سام سونگ جاتا ہے جب آپ کی باری آتی ہے، اور ہم سیاست کرتے ہیں، سیاسی ورکر ہیں، سونے کا چمچہ لے کر منہ میں سیاست دان نہیں بنے۔ 10 سال مشرف کا ڈکٹیٹرشپ کا دور بھی دیکھا ہے۔ مجھے الہام نہیں ہوتا، مجھے خواب نہیں آتے، لیکن وہ وقت بڑی جلدی آنے والا ہے جب نیازی صاحب دوبارہ کنٹینر پر چڑھیں گے۔ ڈی چوک میں جو 126 دن لوگوں سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹے وعدے کیے تھے، سبز باغ دکھائے تھے، اب پھر ڈی چوک میں کنٹینر پر چڑھ کر کون سے معافی مانگیں گے کہ میں آپ سے جھوٹ بولتا تھا، میرے پاس کوئی معاشی ایجنڈا نہیں تھا، میں آپ سے جھوٹ بولتا تھا کہ میں خود مسٹر کلین ہوں۔ نیازی صاحب، یہ لوگ آپ کا احتساب کریں گے، اور آپ کہتے ہیں نا کہ میں اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا۔ جو 5 مہینے میں کھیل تماشا پاکستانی عوام نے دیکھا ہے، جو مہنگائی، پیٹرول، بجلی، ٹیکسز کی سمت میں ہوئی ہے، اور ابھی یہ فروٹ منڈی میں لاہور میں آپ کا ناجائز تجاوزات کا آپریشن ہو رہا تھا، اور 65 سالہ ریڈی بان جو ہے وہ چل بسا، اس کے 6 بچیاں ہیں۔ کسی حکومت عہدیدار کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس سے جا کر اپنا اظہار ہمدردی کرتا اس 6 یتیم بچیوں سے۔ اور دوسری طرف آج بھی ناجائز تجاوزات بنی گالا کا غریب ریڑھی بان کی بے بسی کا منہ چڑھاتے ہیں۔ یہ ہے نیا پاکستان۔ میری گزارش یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب، آپ نے 1400 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیا ہے، اور آپ کہتے تھے کہ حکومت قرضہ لیتی ہے۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کیس کا جواب دینا ہوگا۔ پتہ نہیں عمران نیازی صاحب کی توہین ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس ملک میں احتساب کا دورہ معیار ہو،
वहाँ पर ये पाकिस्तानी कौम की 22 करोड़ लोगों की ज़रूर तौहीन है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो छुप जाए और उसको सांप सूंघ जाए जब उससे पूछा जाए कि आपने अपना बनी गारा से आपने और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर से आपने सैर सपाटे किए। कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस बात का जवाब आपसे लेके रहेगी। और आज देखें, मैंने उस दिन आपसे फिच की बात की थी, उन्होंने कहा कि मुआशी हालात दिगरगू है। अब ये मूडीज ने कहा है कि आज पाकिस्तान के पास कर्जे की किस्त की अदायगी से कम ज़खायर हैं, और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि अभी तक जितनी भी महंगाई हुई है वो अमीरों के लिए हुई है। और भाई, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनको एहसास नहीं है? आज जरा गली में जाके देखो, आज किसी दुकानदार से पूछो, किसी रेडी बान से पूछो, उनकी कमर टूट गई है अजियतनाक महंगाई से। और अभी अपना जो है इस हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया कि इन्होंने IMF के पास जाना है कि नहीं जाना है। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है मुआशी तौर पर, ये मईशत के लिए जहर कातिल है। ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इन्होंने मईशत को ठीक कैसे करना है। मांगे तांगे के पैसे लेकर दोस्त ममालिक से वो पता नहीं कहाँ पर खर्च हो गए। तो आज ताजर भी परेशान है, अपना जो है वो बिजनेसमैन भी परेशान है, गरीब आदमी भी परेशान है। और इस तरह ये पाकिस्तान नहीं चलने वाला। अगर तो आपने अपनी सिम दुरुस्त करनी है, अपना किबला दुरुस्त करना है, तो अपोजिशन जो है पाकिस्तान की खातिर आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आपके जो लक्षण हैं, आपकी जो बद अखलाकी है, मुझे ये कहना पड़ता है कि ना अहलियत है, ना काबिलियत है और ना अमलियत है। कोई प्रैक्टिकल स्टेप अभी तक नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता आपको 5 महीने में दूध की नहरें बहा देनी चाहिए थी, लेकिन तमाम मुआशी ऑब्जर्वर्स ये पूछते हैं कि भाई आपने कोई रोड मैप दिया है? अगर आप कहते हैं कि इस मुल्क को हमने ठीक करना है, कौन सा रोड मैप दिया है? इस पंजाब में अभी तक मामलात जो हैं वो जूं के तूं हैं, ना लोकल बॉडीज को फंड्स मिल रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू नहीं किया। उस दिन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये ऑरेंज लाइन जो है ये लाहौर वालों के लिए तोहफा है, और फिर इनको अपना जो है ना वो होश आई जो कहते थे कि ये सफ़ेद हाथी है। अगर चीन ने कर्जा दिया है आपसे, जो बना बनाया मंसूबा उसको आप मुकम्मल नहीं कर पाते, तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कहता है कि ये लोग जो हैं इनमें अहलियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये ना खेल का मैदान है, ना ये क्रिकेट की पिच है, ना ये गेंद और बल्ले का खेल है। न्याजी साहब, होश के नाखून लें, और बढ़ के मारने से और ऑपोजिशन को धमकियां देने से पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं चलता। आपको अमली तौर पर लोगों को साबित करना होगा कि आप कुछ कर सकते हैं, वरना फिर ये कौम आपका मुहासबा करेगी। मिनी बजट आ रहा है, वैसे ही बहुत महंगाई है, क्या कहेंगे आप? जो फैसला आया इस हवाले से आप क्या कहते हैं सर? मेरा ख्याल है ये फैसला जो है बड़ा अहमियत का हामिल है। मैंने इसकी अपना जो है वो डिटेल अपना अभी नहीं पढ़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और आने वाले जो फैसले होंगे ये प्रेसिडेंट जो है उसके लिए यार्ड स्टिक का काम करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मांगेंगे कि मैं आपसे झूठ बोलता था, मेरे पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं था, मैं आपसे झूठ बोलता था कि मैं खुद मिस्टर क्लीन हूँ। न्याई साहब, ये लोग आपका एहतसाब करेंगे, और आप कहते हैं ना कि मैं ऑपोजिशन को NRO नहीं दूंगा। जो 5 महीने में खेल तमाशा पाकिस्तानी अवाम ने देखा है, जो महंगाई, पेट्रोल, बिजली, टैक्सेस की मद में हुई है, और अभी ये फ्रूट मंडी में लाहौर में आपका नाजायज तजावजात का ऑपरेशन हो रहा था, और 65 साला रेडी बान जो है वो चल बसा, उसके 6 बच्चियां हैं। किसी हुकूमत ओहदेदार को तौफीक नहीं हुई कि उससे जाकर अपना इजहार हमदर्दी करता उस 6 यतीम बच्चियों से। और दूसरी तरफ आज भी नाजायज तजावजात बनी गाला का गरीब रेडी बान की बेबसी का मुंह चढ़ाते हैं। ये है नया पाकिस्तान।
मेरी गुजारिश ये है कि इमरान न्याई साहब आपने 1400 अरब रुपया स्टेट बैंक से कर्जा लिया है और आप कहते थे कि हुकूमत कर्जा लेती है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आपको हेलीकॉप्टर केस का जवाब देना होगा। पता नहीं इमरान न्याई साहब की तौहीन है कि नहीं है, लेकिन जिस मुल्क में एहतसाब का दौरा मयार हो वहाँ पर ये पाकिस्तानी कौम की 22 करोड़ लोगों की ज़रूर तौहीन है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो छुप जाए और उसको सांप सूंघ जाए जब उससे पूछा जाए कि आपने अपना बनी गारा से आपने और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर से आपने सैर सपाटे किए। कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस बात का जवाब आपसे लेके रहेगी। और आज देखें, मैंने उस दिन आपसे फिच की बात की थी, उन्होंने कहा कि मुआशी हालात दिगरगू है। अब ये मूडीज ने कहा है कि आज पाकिस्तान के पास कर्जे की किस्त की अदायगी से कम ज़खायर हैं, और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि अभी तक जितनी भी महंगाई हुई है वो अमीरों के लिए हुई है। और भाई ये कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनको एहसास नहीं है। आज जरा गली में जाके देखो, आज किसी दुकानदार से पूछो, किसी रेडी बान से पूछो, उनकी कमर टूट गई है अजियतनाक महंगाई से। और अभी अपना जो है इस हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया कि इन्होंने IMF के पास जाना है कि नहीं जाना है। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है मुआशी तौर पर, ये मईशत के लिए जहर कातिल है। ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इन्होंने मईशत को ठीक कैसे करना है। मांगे तांगे के पैसे लेकर दोस्त ममालिक से वो पता नहीं कहाँ पर खर्च